Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. It's a time to learn about computer science. You know that computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. We have started chapter number 4, which is named as Applications and Uses of Computer. In the previous lecture, we have discussed some uses of computers, and you know very well, computer has made a very vital impact on the society. It has changed the way of life. The use of computer technology has affected every field of life. People are using computers for performing different tasks quickly and easily. Many organizations are using computers for keeping the record of their customers. Banks are using computers for maintaining accounts and managing financial transactions. People are using computers for paying their bills. Computer can be used in education field to improve teaching and learning process. Similarly, student can learn to read and speak a foreign language. Many educational games are becoming popular in the students. Moreover, computer is being used in every field of life. These fields may be medical, business, industry, airline and weather forecasting, etc. So the importance of computer in our daily life can't be denied. Here we have to define a term CAM. First of all, you must know that CAM stands for Computer Aided Manufacturing, which means that मदद दिया हुआ कंप्यूटर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं CAM is the use of software. एक सॉफ्टवेयर का यूज़ है जिसके ज़रिए हम मशीन के टूल्स को कंट्रोल कर सकते हैं. कोई भी मशीन जब हम बना रहे होते हैं तो उसको टूल्स को कंट्रोल करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं CAM. CAM is also known as Computer Aided Modeling, or we can also say that Computer Aided Machining. It is the use of software to control machine tools and related ones in the manufacturing of workpieces. Computer aided manufacturing is also the use of computer system to plan, manage and control the operations of manufacturing plants through direct or indirect computer interface with plants production process. किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हम ऑपरेशंस को कंट्रोल, मैनेज या फिर प्लान करने के लिए भी CAM यूज़ कर सकते हैं. Here we will discuss some benefits of CAM. कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अब हम ये देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद एक्यूरेसी. जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा. द क्वालिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इज़ कंसिस्टेंट. सारे के सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बिल्कुल कंसिस्टेंट होगी. मीन्स के इसमें किसी भी किस्म की रुकावट नहीं होगी. प्रोडक्शन इज़ मच चीपर. प्रोडक्ट डिज़ाइन कैन बी मॉडिफाइड ईजीली. मॉडिफाई मीन्स चेंज करना. अगर हम प्रोडक्ट की डिज़ाइन में किसी भी किस्म की चेंजेस करना चाहते हैं तो हम ईजीली कर सकते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एनी ब्रेक. बहुत सी आइटम्स को हम किसी ब्रेक के बगैर ही बना सकते हैं. इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ पर्सनस फॉर लेबर. काम करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती. यहाँ बहुत कम लोगों के ज़रिए ही हम डिज़ाइन ईजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. Here we will define a term CAD. CAD stands for Computer Aided Design. ये एक तैयार किया हुआ डिज़ाइन है जो कि कंसिस्ट करता है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पे और किसी सॉफ्टवेयर पे. ज़्यादातर हम इसके लिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमने शेप्स ड्रॉ करनी होती हैं, जिसके ज़रिए डिज़ाइनर कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप को ड्रॉ कर सकता है. CAD हम यूज़ करते हैं कार्स के डिज़ाइन बनाने के लिए, या फिर अगर हम कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए हम CAD यूज़ कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट CAD कंसिस्ट ऑफ अ पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड ग्राफिक सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स डिज़ाइनर टू मैनिपुलेट ज्योमेट्रिक शेप्स. CAD में हम बहुत सी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं. इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड एंड ग्राफिक टैबलेट्स, एंड वी ऑल्सो यूज़ आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर एंड प्लॉटर. क्योंकि हमें डिज़ाइंस के प्रिंट भी चाहिए होते हैं तो इसके लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की भी ज़रूरत होती है. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू एड इन द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ डिज़ाइन. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम कोई न्यू मॉडल क्रिएट कर रहे हैं
उस मॉडल या उस डिज़ाइन में हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या फिर हम किसी चीज़ का पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैड को यूज़ कर सकते हैं। कैड को हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं ताकि मॉडल्स को चेक किया जा सके, मॉडल्स को टेस्ट किया जा सके। इट ऑल्सो कंपाइल्स पार्ट्स एंड क्वांटिटीज़ लिस्ट। इसके ज़रिए सारे के सारे पार्ट्स को कंपाइल किया जाता है और क्वांटिटीज़ लिस्ट को चेक किया जाता है। आउटलाइन प्रोसीजर्स, सारे के सारे प्रोसीजर को एक आउटलाइन दे दी जाती है, उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग का पहले से ही पता लगा लिया जाता है। कैड टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ टूल्स एंड मशीनरी। ज़्यादातर हम कैड को यूज़ करते हैं मशीनरी के और टूल्स वगैरह के डिज़ाइन बनाने में। Computer aided design is used to accomplish preliminary design and layouts, design details and calculations, creating 3D models. CAD के ज़रिए हम 3D मॉडल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। 3D कहते हैं 3 डायमेंशनल मॉडल्स को, ऐसे मॉडल्स जिसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। क्रिएटिंग एंड रिलीजिंग ड्राइंग्स एज वेल एज इंटरफेसिंग विद एनालिसिस, मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर लिया जाता है जो मशीन के सारे टूल्स को कंट्रोल करता है, जिससे हमारे लिए कोई भी मॉडल डिज़ाइन करना बहुत इजी हो जाता है। The difference between CAM and CAD is given here, where computer-aided design is the implementation of digital computers in engineering design and production, and on the other hand, computer-aided manufacturing is the implementation of computers in transforming engineering designs into end products. CAD में हम एक डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं और एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का मॉडल या कोई डिज़ाइन प्रिपेयर किया जा सकता है कैड के ज़रिए। एंड कैम इज़ द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द टूल्स ऑफ द मशीनरी। कैम के ज़रिए हम एक मशीन के जितने भी टूल्स होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट कंप्यूटर सिमुलेशंस, we can say that this is a special type of computer model। ये कंप्यूटर मॉडल की एक ऐसी टाइप है जिसके ज़रिए हम किसी भी सिस्टम का एक आर्टिफिशियल मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। इस मॉडल से हमें ये हेल्प मिलेगी कि हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एरोप्लेन की सिमुलेशंस बना रहे हैं तो इससे हमें ये हेल्प होगी कि हम पायलट को ट्रेन कर सकते हैं। पायलट एरोप्लेन के डिफरेंट पार्ट्स को, उसकी वर्किंग को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेगा इस मॉडल के ज़रिए। So we can say that a special type of computer model that is used to create artificial model of a system is called simulation. Some examples of computer simulation modeling include weather forecasting, flight simulators used for training pilot, and car crash modeling. All these are examples of simulations. Some benefits of computer simulations are given below. इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि इसकी कॉस्ट बहुत रीज़नेबल होती है। इट कैन बी यूज टू ट्रेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईजीली। बहुत से लोगों को हम एक ही सिमुलेशन के ज़रिए ट्रेन कर सकते हैं। द सेम सिमुलेशन कैन बी यूज ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स में हम एक ही सिमुलेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने सिमुलेशन ऑफ एरोप्लेन बना ली है तो फिर हम इसे मल्टीपल कंप्यूटर्स में यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स भी सिमुलेशंस को यूज़ कर सकते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। इससे उन्हें क्विकली रिजल्ट मिल जाते हैं और उन्हें इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है कि एक्सपेरिमेंट हमने करना कैसे है। सो वी कैन से दैट बाय यूजिंग कैम एंड कैड यू कैन ड्रॉ एंड कंट्रोल द टूल्स ऑफ द मशीनरी। यू कैन ऑल्सो मैनेज एंड प्लान द मॉडल दैट यू आर क्रिएटिंग। Now you have to learn all these points about the CAM and CAD. You have to give your best. Thanks to all of you for sharing your precious time. Allah Hafiz.